Okay, welcome back, friends. Now let us see a little bit about the PIC architecture. The earlier session we understood a little bit about the memories and some features and differentiation with respect to the basic Intel 8051. Now let us see what is there in PIC architecture. In PIC microcontroller, they have many number of registers for arithmetic logical unit operations. Like in 8051 we have accumulator, okay, which the program is there, resides in the ROM, and then it is fetched by the program counter, and then the operations are performed. The temporary variables goes to RAM, and accumulator is used for almost doing all the arithmetic and logic operations. So there is a register A and register B, we say, in case of 8051. So similarly, in case of PIC, there are many registers which are used for performing these ALU operations. And one among them, very important register is working register, WREG. WREG is actually working register. Like we have accumulator, ACC in case of 8051, we have WREG in case of PIC. They call it working register because almost every operation is performed, conducted through this register. And it is most widely used registers by PIC in all arithmetic operations and logical operations. Okay. And obviously, like as we have in case of 8051, the accumulator through which all the ALU operations are performed, and then temporary results are stored into the working area, RAM area, scratchpad area. In the same way here also, the WREG, all the operations are performed. Then there are some GPRs and SFRs in RAM area of the PIC where these things are actually stored or used. And as I informed you already, working register is just equivalent to the accumulator in case of a microprocessor, microcontroller, 8051 controller. Then PIC CPU uses many registers besides this to store information temporarily. Okay, and this information might be byte of data. Okay, information can be anything. It can be data or it can be address. Okay, so address of the data, because you'll fetch the address, you'll fetch the data again by giving address only. So therefore this information is stored, okay, byte of data or the address of the data to be fetched in different registers. Okay, and these majority are 8-bit registers. Okay, in PIC, because as I was telling you that the 16-bit wide bus is the instruction set bus. It is for fetching the instructions 2 byte, and as a result, since now highway is more, it is broadband, so the fetching speed and the machine cycle execution speed is fast because the instruction set is 16-bit wide, whereas your data bus still remains 8-bit wide, and that is why it is 8-bit microcontroller. So your data bit, your data bus, okay, which is connected to your RAM memory and your all other SFRs, your ports, okay, timer counter, peripherals, etc. So these are all 8-bit registers. So therefore majority of the registers are 8-bit, just like your 8051. Okay, only your program counter in case of 8051 it is 16-bit wide, whereas in this case it is 21-bit wide. Okay. Okay. Then how this working register works, let us understand that. So वर्किंग रजिस्टर का ऑपरेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम यहाँ पर मेंशन है कि मूव लिटरली k इंटू वर्किंग रजिस्टर. k इज अ रजिस्टर कि k एक जो वेरिएबल है, यहाँ के जो कंटेंट्स है दे विल मूव टू द वर्किंग रजिस्टर. सो the way it is written in case of, in assembly language in case of PIC is this, like this: move literally, L stands for literally, the contents, okay, literally the contents of that k location to working register. And k is just 8-bit value. The range can be from 0 to 255 in decimal, or 0 to FFF in case of hex. And this L stands for literal, that means dealing with actual value that must be provided right there with the instruction. Okay, the meaning is move a literal value to WREG, the destination. So source is your that k,
and it gets literally moved whatever is there in the from the source to the destination, that is working register. Source is your K, and from K it moves to the working register W, whatever is there. For example, now let's say we are saying move literally 25 hex into working register. So what happens is now 25 hex gets assigned and is allotted and is available now in the working register. Now if you check the value of W, it becomes W 25 hex. Now let's say we want to move 87. So firstly it will load. Another example is 87 hex into W. So now W reg value is 87 hex. And we want to move now 15. So we'll write 15. So W reg value will be 15. It is so as simple as that. So your hex data gets transferred, loaded into working register. So this is how we normally do. So just like आपके 805 में आप accumulator लिखते थे A, यहाँ पर W है. That is the difference. एक एडिशन ऑपरेशन देख लेते हैं कैसे करता है ये वर्किंग रजिस्टर. कि एडिशन में क्या होगा, ऐड लिटरली आप एक पर्टिकुलर वहां से वर्किंग रजिस्टर में ऐड करना है. तो एग्जांपल है कि लेट्स से ऐड वी वांट टू ऐड 25 हेक्स एंड 35 हेक्स. 25 हेक्स हमें मूव करना है पहले वर्किंग रजिस्टर में, उसके बाद में आपने लिखना है ऐड 34. तो क्या होगा, W विल बी इक्वल टू W प्लस 34 हेक्स. सो ये सिंपल एडिशन जो होगा इट विल बी 59 हेक्स. सो दिस इज हाउ working register works, just like your accumulator in case of 8051. So now we understand now in PIC what happens, that there is a working register. There is something kind of like working register. So this is the architecture details कि RAM क्या है, ROM क्या है, इसका data bus कैसा है, instruction set bus कैसा है, and then कौन इसमें operations करता है, like working register इसमें है, WREC, okay. किसमें? हाँ हाँ डेसिमल में चल जाएगा. नहीं ये ऑपरेशन तो हमें हेक्स में ही करना है. दीज आर वी डू ओनली हेक्स. जो असेंबली लैंग्वेज मैक्सिमम इसमें जो अवेलेबिलिटी है वो हेक्स में हम करना है. बट आई हैव सो फार कम अक्रॉस हेक्स ओनली पीक में. मे बी इट इज पॉसिबल, आई विल नीड टू चेक. Okay, so now we'll check about the FR file registers. जैसे हमारा वर्किंग रजिस्टर आपका WREC हो गया, तो जो आपके स्क्रैच पैड है, टेम्पररी स्क्रैच पैड जिसमें आपके टेम्पररी वेरिएबल्स वगैरह लोड करने हैं, सो वो सब या स्टोर करना है कुछ वैल्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एयरली ऑपरेशंस, तो फाइल रजिस्टर्स. तो जैसे मैं बता रहा था कि फाइल रजिस्टर जो आपका रैम एरिया है, बेसिकली रैम एरिया इज फाइल रजिस्टर्स, वी कॉल इज FRs, फाइल रजिस्टर्स. और इसमें दो टाइप के, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स. एक है आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स और दूसरा है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स. स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आर ऑल कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड टू योर पेरिफेरल्स. जो ऑन चिप पेरिफेरल्स है, टाइमर, काउंटर एंड ऑल दिस, और इवन योर पोर्ट्स. सो दोज आर कॉल्ड SFRs. वो सब में होंगे आपके 256 बाइट तक वो होंगे. बिसाइड्स दिस फाइल रजिस्टर में GPRs रहेंगे आपके, जो कि आपको एज अ स्क्रैच पैड यूज कर सकते हो टेम्पररी वर्क के लिए. सो बिसाइड्स वर्किंग रजिस्टर सो मेनी अदर रजिस्टर्स विच आर यूज्ड. जैसे हम 805 में बैंक्स यूज करते थे, ठीक है, R0, R0, R1, R2 लाइक दैट. सो दोज बैंक्स वी वर यूजिंग. तो इसमें भी जो है आप मेनी रजिस्टर्स है, दीज आर वहाँ पे 32 बाइट्स थे हमारे पास बैंक में, ना. ईच बैंक वाज 8 बाइट्स वाइड. 8051 के केस में 8 बाइट्स का वाइड एक बैंक था, तो वी हैड टोटल 32 बाइट्स 4 बैंक्स के लिए, ठीक है. यहाँ पर जो है आपके पास दीज आर डेटा मेमोरी स्पेसेस, एंड इसमें आप रीड राइट दोनों कर सकते हो. रॉम में तो आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो, तो रैम में रीड और राइट दोनों डेटा मेमोरी स्पेसेस में कर सकते हो. दीज आर कॉल्ड फाइल रजिस्टर्स, FRs. अब हम देखते हैं कि इसकी स्पेस एलोकेशन कैसा होता है. फाइल रजिस्टर डेटा रैम का स्पेस एलोकेशन पिक में कैसा है, ठीक है. वहां पर आपके पास वो 128 बाइट्स तक जाता था 8051 में, 00 टू ऑल दैट अप टू 8070 लाइक दैट समथिंग एड्रेसेस थे 70. ओके, दैट आई थिंक पहले 4 बैंक जो है वो वहां तक, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, ये जो 32 बाइट्स थे
वहां तक जा रहे थे आपके, और 70x तक, फिर 80x के बाद में आपका कुछ टेम्पोररी स्क्रैच पैड वो शुरू हो जाता था, बिट एड्रेसेबल एरिया, ऐसा वो पूरा, यू माइट बी रिकॉलिंग दैट। तो इसमें स्पेस एलोकेशन जो है वो देखते कैसा होता है। एक तो जो है फाइल रजिस्टर्स इज रीड राइट मेमोरी रैम, and these are used by the CPU for data storage, scratchpad registers for internal use and functions. Internal जो functions होते हैं CPU करता है ALU operations, उसके लिए use होंगे। Arithmetical logical operations can be performed. Size varies with chip from 32 to, वही है जो आपका RAM का एरिया है 32 बाइट से लेके 4 किलोबाइट्स तक वेरी कर सकता है इसका GPR का एरिया। एंड फाइल रजिस्टर आर बाइट साइज्ड वाइट, ये जो रजिस्टर है 8 बिट का, पूरा एक बाइट का इसका विड्थ होगा। एंड FR इज डिवाइडेड SFR एंड GPR इज ऑल्सो GP RAM, जनरल पर्पज रैम। ओके, GPR is nothing but general पर्पज रैम। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, this I have been telling you already that dedicated to specific function, ALU स्टेटस रजिस्टर इसके अंदर भी होता है, जैसे उसमें आपका एक स्टेटस रजिस्टर होता है, वो भी इसमें एक आएगा एग्जांपल कि हम कैसे ऑपरेशन के बाद में 0, नॉन जीरो, डिजिटल 0, वो स्टेटस रजिस्टर इसके अंदर भी है, विच टेल्स यू द फ्लैग्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशंस परफॉर्म। तो स्टेटस रजिस्टर्स ALU के ऑपरेशन का स्टेटस आपको पता चलेगा। टाइमर्स, सीरियल कम्युनिकेशन, IO पोर्ट्स, ADC, तो इसके रिलेटेड जो भी है वो SFR से। फंक्शन ऑफ SFR इज फिक्स बाय डिजाइनर, कंट्रोल पेरिफेरल्स, ठीक है, डिजाइनर ने फिक्स कर दिया, इसका कंट्रोल पेरिफेरल्स के साथ ही एसोसिएटेड है। ये आप जनरल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते कि भाई आपने सोचा कि इसमें कुछ स्टोर कर लूं मैं, ठीक है, जैसे स्टोर करते हैं ना कोई आप टेम्पररी एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, वो स्टोरेज इसमें नहीं कर सकते आप। यू कैन जस्ट यूज इट फॉर टाइमर कंट्रोल या सीरियल पोर्ट कंट्रोल। एंड अगेन क्योंकि 8 बिट है पिक, तो आपके SFR पूरे 8 बिट रजिस्टर्स है ये, ठीक है। नंबर ऑफ SFR डिपेंड्स अपॉन फैमिली मेंबर्स, वैरीज, क्योंकि किसी में अगर 4 है, ठीक है ना, जैसे हम 8051 देख रहे थे, 8052 में 3 है टाइमर्स, तो इसमें भी पिक में अगर ज्यादा दूसरी फैमिली है तो ज्यादा टाइमर्स है या कुछ और एडिशनल पेरिफेरल्स ऑन चिप है तो SFR ज्यादा हो जाएंगे। एंड दिस वैरीज फ्रॉम 7 to 100, इतने ज्यादा हो सकते हैं, 100 SFRs हो सकते हैं। Now let us understand about the GPRs, जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स रैम है उसमें क्या है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ रैम लोकेशंस, ठीक है, GPR के जो 256 बाइट के बाद में जो शुरू होते हैं, अभी हम शॉर्टली मेमोरी स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसे दिखते हैं ये और उसका लोकेशंस कहाँ शुरू होता है। तो ये ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं विच आर यूज फॉर स्टोरेज, स्क्रैचपैड, 8 बिट वाइड होते हैं ये, एंड स्पेस वेरी चिप टू चिप, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन फाइल रजिस्टर्स इज GPR। जैसे 4 किलोबाइट्स है ना, तो स्टार्टिंग का 128 बाइट्स है तो 56 बाइट तो ये डेडिकेटली आपका SFR है, इसके आगे जाएगा नहीं SFR, ठीक है। वेयर आपका जो GPR है दिस विल डिपेंड अपॉन कि कौन सी फैमिली यूज की, तो 256 बाइट के आगे आपके पूरे अप टू 4 किलोबाइट्स तक ये यूज हो सकते हैं। एंड ईच बैंक, देयर आर 16 बैंक्स, ईच बैंक जो रहेगा वो 256 बाइट का रहेगा, ओके। जो हमारा वो बैंक था 8051 में, वो कितना बाइट था? बैंक 4 बैंक थे ना उसमें, है? 0 हाँ, तो एक बैंक जो है बैंक 0 है ना, उसमें R0 to R7 होते थे, तो वो एक बैंक का कितना बाइट? 8 बाइट्स का एक बैंक होता था, ठीक है ना। R0 8 बिट्स का एक बाइट का एक रजिस्टर, और टोटल 7 रजिस्टर जो है 8 बाइट का था। तो एक बैंक में 8 बाइट आपकी मेमोरी एलोकेशन थी, और चारों बैंक जो थे, बैंक 0 से बैंक 3, 32 बाइट्स के बैंक थे। इस केस में 256 बाइट का एक बैंक है, ओके, एंड देयर आर 16 बैंक्स, इट कैन गो अप टू 16 बैंक्स। तो दिस इज द डिफरेंस कि आपको कितना रिच फीचर्स पिक में मिल रहे हैं कि 4 बैंक नहीं, बहुत सारे बैंक्स है, और ईच बैंक इज 256 बाइट्स वाइड, ओके, ठीक है। अभी एक टेबल में आपको देखो कंपैरिजन दिख रहा है कि फाइल रजिस्टर जो है ये डिफरेंट, इसमें 32 बाइट्स है और अप टू 4 किलोबाइट्स तक ये जा सकते हैं। और इसमें क्या है, ये जो बाइट्स दिख रहे हैं इसमें SFR प्लस GPR ये मिलके इतना बन रहा है कि 7 बाइट्स SFR है,
बाकी 25 बाइट जो है वो GPR है। तो ये सब बाइट्स इस तरह से 32 बन गया। तो टोटल ये, बट आपको जो अगर सिलेक्शन के लिए आप देखोगे तो सिर्फ GPR दिखेगा, आपको 25 बाइट लिखा होगा। तो ये है अंदर अंडरस्टूड सा है। तो ये सब इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है SFR और GPR की। नाउ लेट अस सी जनरल पर्पस रैम वर्सेस ई स्क्वायर PROM, क्योंकि दोनों आपके जो है फ्लैश है, ठीक है, बट ओनली रैम जो है आपका SRAM बेस्ड वोलेटाइल मेमोरी है, वहां पर आपका स्टोरेज रहेगा परमानेंट रिस्पेक्टिव ऑफ पावर है नहीं है। एंड देयर इज नो पावर, इट विल स्टिल रिमेन देयर। GPRs आर यूज्ड बाय CPU, जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो CPU यूज करता है फॉर इंटरनल डेटा स्टोरेज। लेकिन स्क्वायर PROM जो है इज एड ऑन मेमोरी है ये, एंड कैन बी एडेड एक्सटर्नली। ये एड ऑन मेमोरी है, एक्सटर्नली भी ऐड कर सकते हैं, और ये अवेलेबल है पिक के अंदर, एंड यू कैन स्टोर इट। ये परमानेंट स्टोरेज है। और पिक में कंटेंट जीरो, स्क्वायर PROM तो जीरो हो सकता है, लेकिन ये FR कांट भी जीरो, फाइल रजिस्टर जीरो नहीं हो सकते। ये मतलब है, ये मस्ट हो रहेगा उसमें। नाउ दिस इज द मेमोरी डिटेल्स। आपका स्टार्टिंग से देखो 07 हेक्स यहाँ तक जो है 128 बाइट आ गया SFR का, 128 बाइट यहाँ पर है, और उसके बाद में 08 हेक्स के बाद आपके 8051 में इतना ही होता है, राइट। और इसी के अंदर आपका देखो बैंक चला गया, इसमें SFR भी आ गया, जनरल पर्पस भी आ गया, है ना। 128 बाइट हो गया ना, कितना, ये 8 बाइट हो गया, 8 बाइट हो गया, ठीक है। और 08 के बाद में 1F तक कितने हुआ, ये 16 और बस 32 बाइट्स का है, राइट। SFR ओके, ये वाला है, यहां तक हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 8051 का केस है, ठीक है ना, 80X तक इतना होता है आपका। इसी में आपका 32 बाइट भी चला जाता है, वो वर्किंग एरिया भी चला जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ एडिशनल भी होता है, एक्सटेंडेड 256 बाइट तक, जो कि हम नॉर्मली यूज भी नहीं करते। हाँ, एड्रेसेस तो डिफरेंट, क्योंकि साइज वेरी होगा तो एड्रेसेस डिफरेंट रहेगी, है ना। जैसे 00 तो वहाँ पे एंड पे है ना सर, ये वाला, हाँ हाँ 00 से स्टार्ट होता है। हाँ, इसमें 0 इस वाले फैमिली में आपका यहाँ से शुरू हुआ, और ये वाला GPR किया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके कितने 7 बाइट्स ही है, जैसे पहला वाला फैमिली था। और इसमें क्या है, इसलिए तो ये कंपेटिबिलिटी है नहीं इसकी, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 12 वाला सीरीज है, आपकी कंपेटिबिलिटी 18 वाले सीरीज से आगे है, ठीक है। इसलिए अब हमने जब बताया था 10X, 12X और 14X, 16X तक कंपेटिबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट अपवर्ड कंपेटिबल, ये आगे वाले में आएगा। तो यहाँ पर ये है, ये आपका 4F, ये 7F तक ही था, यहाँ पर 7 बाइट्स थे SFR के, और यहाँ पर ये 4F तक हो गया। ये आपका 4 किलोबाइट से पूरा आ गया, ये फुल फैमिली है। यहाँ पर आपका 4K FFX इज 4 किलोबाइट्स यहाँ तक है। और 8051 में आपका 80X तक यहाँ पर ही जो है 128 बाइट्स यहाँ पर पूरी आती थी, जिसके अंदर सब कुछ है। तो ये आपका एरिया इसमें क्या है कि इधर से शुरू होगा, हायर वाले बाइट से। मेमोरी बैंकिंग आगे आएगी कैसे किया हुआ है, बट ऐसे यहाँ से शुरू होता है कि ये वाला एरिया बाद में, देयर इज रीजन टू इट ऑल्सो, क्यों किया है। स्टैक पॉइंटर इसी के अंदर, अब फर्दर एड्रेसिंग इन्हीं के अंदर होंगे, हाँ, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ना वो, तो स्टैक पॉइंटर भी इसी के अंदर आएगा। ओके, फाइल रजिस्टर एंड एक्सेस बैंक इन पिक। अब आपके जो फाइल रजिस्टर है और एक्सेस बैंक, वो कैसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम बैंक को। कि फाइल रजिस्टर्स कैन हैव मैक्सिमम 4 किलोबाइट्स, हाईएस्ट एड्रेस जो है 00 से लेके 4 किलोबाइट्स तक रहेगा, और डिवाइडेड इनटू 256 बाइट का बैंक्स, इसलिए 16 बैंक है, 16 बैंक्स, ईच बैंक इज ऑफ 256 बाइट्स। और 8051 में कितने का एक बैंक था, 8 बाइट का। So there is a lot of memory available, and every PIC18 family has at least one file register bank. Minimum 256 बाइट तो रहेगा ही रहेगा,
और जीपीआर आपके जो है 128 एंड एसएफआर 1, हाँ जो 256 बाइट है इसमें से भी आपका जीपीआर 128 और एसएफआर 128 रहेगा, ठीक है। और इसीलिए वो जो हम देख रहे थे, क्योंकि वेरी करता है ना साइज, और इसीलिए क्या है कि वो एसएफआर नीचे से 0 होंगे, ठीक है। और जीपीआर जो है हायर कितना भी हो सकता है, क्योंकि जो वेरी कर रहा है जीपीआर वेरी कर रहा है, आपका एसएफआर नहीं वेरी कर रहा। एसएफआर जो है ये वेरी नहीं कर रहा है, फिक्स्ड है। तो अगर यहाँ पर एसएफआर है यहाँ तक, तो ये वाला तो नहीं बट ये वाला, तो इसमें इसीलिए एसएफआर का मतलब लॉजिक उनका यही दिया है कि जो हायर से शुरू होगा, क्योंकि आपका बढ़ेगा जीपीआर बढ़ेगा, तो इसकी जो बैंकिंग है, बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी के लिए उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ आर्किटेक्चर। ओके, एवरी पिकेटिंग फैमिली हैज एटलीस्ट वन दिस 7FX GPR for read write storage or scratch pad can be directly accessed by location address। 7FX जो है यहाँ तक जो है जीपीआर है ना, हाँ ये जीपीआर है, ठीक है। और यूज फॉर एसएफआरस, करेक्ट, वो हायर वाला एड्रेस बिट एड्रेसेबल रहेंगे, यस बिट एड्रेसेबल। GPR and SFR addresses are not contiguous, मतलब एक कंटिन्यूटी में नहीं है ये, टू अलाउ लार्जर डेटा रैम साइज टू अदर पिक फैमिली। वही जो रीजन मैं एक बात कर रहा था कि टू अलाउ लार्जर डेटा रैम साइज टू अदर पिक फैमिली, तो वो कंटिन्यूटी में नहीं है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर होगा शायद, ये पहला ये सब 8 बिट है। मैक्सिमम स्पेस फॉर फाइल रजिस्टर डेटा रैम जो है इन पिक, ये 4 किलोबाइट्स है, यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, 1 बाइट 2 बाइट और यहाँ पर 4 किलोबाइट्स तक आ गए आप। और ये वाला जो दिखा रहे हैं कि ऑल पिक 18 फिप जो चिप्स है दे विल हैव दिस सेक्शन, ये हायर वाला सेक्शन उसमें रहेगा, एसएफआर वाला, ठीक है, 128 बाइट वाला। और जीपीआर में से क्या रहेगा, या तो जीपीआर में जो है आपका 128 हो सकता है या 4096। तो 4096 से अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट करूँ 128, तो 3698 बाइट्स। So not all members will have this amount. Various PIC18 members have different amount. ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला अगर यहाँ पर 128 है प्लस ये 128, बस फिर 256 तक ही रहेगा वो, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो फिर जीपीआर बढ़ रहा है ना, एसएफआर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए एसएफआर फिक्स कर दिया। सो फाइल रजिस्टर एलोकेशन बिटवीन जीपी रैम एंड एसएफआर। सी वाला क्या है कि डेटा मेमोरी मैप, तो इसमें आपके 128 बाइट्स एसएफआर के 128 बाइट्स ले लिए लास्ट वाले बैंक से, दैट इज सेगमेंट 1, सेगमेंट 0 जीपीआर से, ये एक्सिस बैंक आपका हो गया 256 बैंक बाइट का एक बैंक बन गया आपका, जिसमें सेगमेंट 0 सेगमेंट 1 है। और एक्सिस बैंक में क्या कर रहे हैं, जीपीआर एसआर रैम एक्सिस बैंक 128 बाइट्स यहां से। ओके, PIC18 फैमिली में जैसे अब 128 की बात करें, ये देखो ये यहाँ से 80 से लेके ये FFF, ये पूरे पोर्ट A B C D E, ये आपके SFR के एड्रेसेस है, ठीक है। तो इसमें आपके पूरे टाइमर, काउंटर, इंटरप्ट्स, ये सब आ गए, वर्किंग रजिस्टर। ये सारा 8 बिट्स है ना, ये 8 बिट्स है, these are 8 बिट्स। बट हमारा पोर्ट 5-6 बिट्स है ना, हाँ पोर्ट भी 5 है, पोर्ट बी जो है, हाँ उसमें जो देख रहे थे हम, तो इसका एड्रेस शुरू होके 8 बिट का है ना, 1 बाइट का, 1 बाइट हो गया ना यहाँ पे, हाँ 1 बाइट, 1 बाइट है ना यहाँ पे, उसमें यूज उतने हैं, बस यूज उतने हैं, 3 4 4 तक है, ए 0 1 2 3 4 यहाँ तक है ना। फिर ये लैच, क्योंकि ईच पोर्ट इज मेड ऑफ पोर्ट, लैच एंड ट्रिस, ये रजिस्टर्स है। अब ट्रिस रजिस्टर का हम फंक्शन देखेंगे क्या है। इसमें आपकी जो इनपुट आउटपुट की डायरेक्शनैलिटी है ना, कि पोर्ट इनपुट एक्ट करेगा कि आउटपुट एक्ट करेगा, वो ट्रिस रजिस्टर डिसाइड करता है, ठीक है।
ट्राई स्टेट बफर है, वो ट्राई स्टेट बफर है, क्योंकि इनपुट एक्ट करना है तो हाई इनपुट इंपीडेंस एक्ट करना पड़ेगा उसको। इसमें ओपन ड्रेन है, ओपन कलेक्टर का कोई फंडा नहीं, सभी रजिस्टर में इनबिल्ट दिए हुए हैं। जैसे 805 में आपका पोर्ट 0 ओपन कलेक्टर ओपन ड्रेन है, ठीक है, इसलिए आपको एज ए इनपुट अगर ऐड कराना है तो इसेंशियली यू हैव टू कनेक्ट वन पुल अप रजिस्टर्स। तो इसमें ये सब ट्राई स्टेट बफर ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, इनपुट के वक्त आपको डायरेक्शनलिटी बता देगा। आपको बतानी है कि पोर्ट इनपुट एक्ट कर रहा है कि आउटपुट एक्ट कर रहा है। और लैच तो लैच करने के लिए उसका मेरे पास पोर्ट का स्ट्रक्चर भी है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो SFR इस तरह से एड्रेसेस है डिफरेंट SFR के। तो ओके, स्टेटस रजिस्टर, तो जैसे उसमें भी हमारे स्टेटस रजिस्टर होता है 8051 में, है ना। तो जो डिफरेंट ALU ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो फ्लैग जनरेट होते हैं, कि 0 फ्लैग, डिजिटल 0 फ्लैग, ठीक है, कैरी फ्लैग, वो यहाँ पर देखेंगे कि लाइक माइक्रो प्रोसेसर और 8051 कंट्रोलर्स, पीक हैज ए फ्लैग रजिस्टर, उसका नाम है स्टेटस रजिस्टर। और 8051 में क्या होता है नाम, हाँ, PSW, एग्जैक्टली। सो PSW जो 8051 है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है ये स्टेटस रजिस्टर। इंडिकेट्स अरिथमेटिक कंडीशन, कैरी हो गया, कैरी बिट जो आएगा, 8 बिट रजिस्टर है ये। ऑल रजिस्टर्स आर 8 बिट, पिक में भी, क्योंकि 8 बिट फैमिली है ये। ऑल्सो कॉल्ड फ्लैग रजिस्टर, इसको फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्लैग स्टेटस बताता है। आउट ऑफ 8 बिट्स इसमें 5 ही बिट्स यूज हुए, वहां पर भी 5 ही है। 3 bits are used unused and read as 0, और 5 flags are conditional flag, 5 flag जो इसमें कैरी है, डिजिटल कैरी है, 0 है, ओवरफ्लो है और नेगेटिव है। अच्छा, अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कि जब भी कैरी जनरेट होगा ना, ठीक है, तो कैरी फ्लैग जो है सेट हो जाएगा। D3 से D4 में कोई अगर कैरी जनरेट होता है तो डिजिटल कैरी फ्लैग हो जाएगा। अगर इसका रजिस्टर का स्टेटस रजिस्टर का रिजल्ट 0 है, ठीक है, 0 फ्लैग, तो ओवरफ्लो फ्लैग। तो आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट। C is 1 when there is a carry beyond D7 bit, D7 बिट के बाद में अगर कैरी जनरेट होता है, और डिजिटल कैरी जो है when there is a carry from D3 to D4 बिट, एंड 0 जो है अगर इसकी वैल्यू एडिशन के वक्त 0। एग्जांपल एक देख लेते हैं कि स्टेटस रजिस्टर का, कि जैसे इसमें हम 38 देखो मूव कर दिया वर्किंग रजिस्टर में 38, और ये ऐड कर दिया 2F, तो हम 38 को इस तरह से लिख सकते हैं बाइनरी में, और 2F को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एंड इफ यू ऐड दिस 0 1 इज 1, 0 1 इज 1, 0 1 1, 1 1 इज 0 विद ए कैरी, 1 0 इज 1 प्लस 1 इज 0 0, यहाँ पर आ गया 1 आ गया, 1 1 इज 0, ठीक है, प्लस 1 इज 1, और यहाँ पर 1 आ गया, तो 0 0 इज 0 प्लस 1 इज 1 एंड 0 0। तो यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ था D3 से, तो ये डिजिटल कैरी जो है 1 हो गया, देखो DC इज 1, ठीक है। और स्टेटस का इसका रजिस्टर का पूरा स्टेटस 0 नहीं है, तो 0 सेट होने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद में कोई कैरी भी जनरेट नहीं हुआ, इसलिए कैरी फ्लैग भी 0। तो ये इसका रिजल्ट है कि DC 1 जनरेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें अगेन 9C और 64 अगर ऐड करने, 9 ऐसे लिख सकते हैं, 64 ऐसे कर सकते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 1 1 इज 0 1 1 0 इज 1 प्लस 1 इज 0, यहाँ कैरी जनरेट हो गया, ठीक है, ये 1 आ गया, तो DC 1 सेट हो गया, नीचे देख रहे होंगे आप। फिर 1 0 इज 1 प्लस 1 इज 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 प्लस 1 1 0, तो यहाँ एक कैरी जनरेट हो गया, राइट। सो आपका C भी 1 हो गया, एंड ये देखो रिजल्ट 0 है, तो 0 भी सेट हो गया, तो तीनों फ्लैग सेट हो गए। ओवरफ्लो फ्लैग तो इसमें अभी एग्जाम्पल तो नहीं है मेरे पास, बट ओवरफ्लो जब हो जाएगा तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है ना। वही जैसे 8051 में होगा या माइक्रो प्रोसेसर में होगा, वही फंक्शन है। तो ये आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर, ओके। प्रोग्राम काउंटर, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर एंड रॉम स्पेस, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, देखो ऑल हमने आर्किटेक्चर के सभी चीजें पॉइंट कवर किए हैं। अब हम देखते हैं प्रोग्राम काउंटर और रॉम स्पेस, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर इज इंपॉर्टेंट रजिस्टर
8051 में प्रोग्राम काउंटर कितना बिट होता है? 16 बिट. ओके, सो नॉर्मली ठीक है. So this you know all functionality of program counter is it addresses it points to the address of next instruction और point करके इस तरह से हम executions होते रहता है. PC incremented automatically as instruction is fetched. जैसे ही instruction fetch होता है PC already increment हो जाता है. Wider is the PC, more memory locations CPU can access. For example 14 bit PC program counter होगा. आपका 8051 में 16 बिट है ना, वो कितना एक्सेस कर सकता है? 16 बिट 64 के गया ना वो मैक्सिमम. ठीक है, टू द पावर 16 is 64 के. सो अब इसमें 14 बिट है तो इट कैन एक्सेस 16 के. टू द पावर 14 is 16 के, क्योंकि टू द पावर 10 is 1 के, तो 1 के 2 के लाइक दैट 16 के आ जाएगा आपका. 1024 बाइट्स 10 के 1 के मिस. सो 0 to 3 FFX ये यहाँ पर जाएगा. FF आपका 4 हो गया और ये 16 हो गया. ठीक है, 12 और 4 16. ठीक है. फॉर 16 बिट पीसी प्रोग्राम काउंटर क्या होगा? टू द पावर 16 विच इज द केस ऑफ 8051 इट कैन गो अप टू 64 के. दैट इज द रीजन वहां पर वो 64 के और एड्रेस बस भी उसका वो है. तो ये यहां तक जाएगा आपका. ठीक है, और 8051 हैज 16 बिट 10 64 के. ठीक है, इन PIC 18 क्या है कि प्रोग्राम काउंटर जो है आपका वो 21 बिट वाइड होता है. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर लो, प्रोग्राम काउंटर हायर, प्रोग्राम काउंटर अपर में से उसमें सिर्फ 5 बिट्स यूज होते हैं और 3 बिट्स नहीं यूज होते. तो ऐसे 21 बिट से यूज करता है. इसलिए कोड स्पेस जो है वो कितना एड्रेस को पॉइंट करने के लिए कैपेबल है? यस, 2 to the power 20 is 1 megabyte और 2 to the power 21 is 2 megabyte. यहां तक ये जा सकता है. बट ऑन चिप जो है ना इतना इंस्टॉल नहीं होता. ऑन चिप आपका 128 के, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड. आप अपग्रेड इसको कर सकते हो. जैसे आपका 8051 में भी तो आपका ऑन चिप 4K है, बट आप एक्सटर्नली 64K तक जा सकते हो. ये इसका है द वे इट लुक्स लाइक. जैसे प्रोग्राम काउंटर लोअर, हायर एंड अपर. 8 बिट से है. इसमें से लास्ट वाली इसमें से सिर्फ 5 बिट यूज हुए हैं, 3 बिट छोड़े हुए हैं. तो 21 बिट का प्रोग्राम काउंटर का स्ट्रक्चर है इसमें. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. अगेन वी आर जस्ट कंपेयरिंग, डिफरेंशिएटिंग कि PIC एंड 8051 कैसे कैसे डिफर करता है एक दूसरे से. तो PIC में ये अगेन एक खासियत है. तो स्पीड वाइज वो हायर है बिकॉज ऑफ RISC एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर. रैम रोम वाइज मच बेटर है. इसकी फेचिंग स्पीड वगैरह मशीन साइकिल 1 में करता है क्योंकि 2 बाइट उसका वाइड रोम स्ट्रक्चर है. ठीक है, और बाकी ये प्रोग्राम काउंटर की एक डिफरेंशिएशन है. ओके, प्रोग्राम काउंटर हो गया हमारा, रैम हो गया, वर्किंग रजिस्टर्स हो गया. अब हम देख रहे हैं कि रोम मेमोरी है ना. हमने बाकी पिन काउंट्स भी देख लिए. अब रोम मेमोरी मैप देखते हैं कि रोम मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम. So it is a code memory. You can say it is a code memory. No member of PIC can access more than 2 mega of code because program counter is this. So this is one of the restrictions we should know and remember. पहले जो है ROM लोकेशन जो है, फर्स्ट ROM लोकेशन ये होगा. However last varies chip to chip. ठीक है, मिनिमम इसमें 4K तो है ही आपके पास. So PIC 18 ऑन चिप साइज जो है देखो डिफरेंट फैमिलीज के डिफरेंट है. 4K से लेके 4K में आपका यहां तक आ गया FFF तक. एंड देन 64K में 4 times F हो गया, करेक्ट. एंड देन 128 के यहां तक हो गया 64 एंड दिस 128 के. ठीक है, इट कैन गो अप टू दैट क्योंकि आपका उसमें वो आ गया ना 8 बिट और ये तीसरे वाला आपने 5 बिट लिया हुआ है. ठीक है, वो आपके 8051 में सिर्फ वहां तक जा सकता है. 16 बिट वाइड था वो, तो वो 64K तक यहां तक जा रहा था. तो इसमें जो है एडिशनली ये जो 0 है बेसिकली यहाँ पर वो
जो लो निबल था ना, निबल वो 5 वाला, वो एक लिया है, तो उसमें से 1 है तो 128 के तक जा रहा है। ओके, फाइंड मेमोरी लोकेशन 4K 16K, तो 4K में आपका देखो ठीक है, 4K में आपका ये यहाँ तक ही है, FFF तक 00 से, ये वाली फैमिली में है। फिर इसका क्या था 16K में आप 4 3 12 एंड ये 4 12 एंड 4 16K, ठीक है। ये एड्रेसिंग 24 बिट्स हाँ? नहीं, ये देखो ना, ये 4K हो गया FF, ये 4 3 12 और ये 4, तो ऐसे एडिशन करोगे तो 16K आ जाएगा। जैसे मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, हाँ लेंथ ऑफ एड्रेस वहाँ पे लिया हुआ है ना, हाँ 24 बिट्स, 24 बिट ये है ना, हाँ ये 21 बिट्स है ना, तो हाँ 21 बिट्स है। ये एड्रेस अभी दिखाने के लिए हम जैसे दिखाने रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे वहां पर 16K के लिए ये 8 बिट्स यूज करते थे ना, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास टोटल 24 नहीं है, बट उसके अगर हमें दोनों ले ले और इसमें से तो सिर्फ ये पूरा यूज है और MSB में से सिर्फ एक ही बिट यूज है, ट्रंकेट हो जाएगा। और ये वाला आपका कितना है 128 28 + 4 32 की, ठीक है। तो ऐसे एड्रेसेस है। चलो, जब रीसेट वेक्टर यहाँ तो बैकअप हो गया, पावर विड्थ इन रॉम विड्थ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 8051। दिस इज डिफरेंट दैन 8051। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा था बार बार कि इसकी जो है 2 बाइट वाइड है लोकेशंस। माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी जो है दैट होल्ड्स कोड इज बाइट एड्रेसेबल, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर फॉर 16 add lines to 16 locations, 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, एड्रेस यहाँ से यहाँ तक। और CPU विथ 8 बिट डेटा, अगर 8 बिट डेटा है विल फेच 1 बाइट एट ए टाइम। आपका वो देखो 16 बिट वाइड है, तो यहाँ पर आपके पास ये लोकेशंस है, लेकिन जो फेचिंग है वो अगर आप 8 बिट वाइज कर रहे हो एट ए टाइम, अगर ये 2 बाइट यहाँ पर है, 2 बाइट में 8 बिट, जैसे 8051 में केस में 8 बिट वाइड था, तो एट ए टाइम 1 आया, मशीन साइकिल जितना भी लगा 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन यूज, तो ये मशीन साइकिल देखो 2 मशीन साइकिल लगेंगे अगर आपको 2 बाइट वाइड फेच करना है डेटा। दिस वाज द केस विथ फर्स्ट IBM PC एंड एप्पल, ठीक है। टू ब्रिंग मोर इंफॉर्मेशन, कोड या डेटा, इंक्रीज डेटा बस विड्थ टू 16 बिट, एग्जाम्पल PC80 ये वाले में यूज हुआ है। 16 बिट अगर हम कर देंगे डेटा बस विड्थ, तो ये हो पाएगा। इंटेल ने फर्दर ये और आगे बढ़ाया, तो ऑब्वियसली मतलब वही हाईवे की एग्जांपल होती है कि व्हेन यू इंक्रीज द लेन्स इन द, है ना, हाईवे का लेन्स इंक्रीज करोगे तो मोर ट्रैफिक कैन ट्रैवल। सो ट्रैफिक लेन, ईच लेन इज 8 बिट्स, सो मोर लेन्स मोर इंफॉर्मेशन टू CPU कैन फेच नाउ मोर इंफॉर्मेशन, so speed is higher. ये क्या चीज है, PIC 18 CPU एंड कोड ROM डेटा बस इज 16 बिट। इन केस ऑफ PIC 18 जो है ना, CPU एंड कोड ROM जो डेटा बस है ये 16 बिट आ गया, ये इसके अंदर छुपा हुआ है, नीचे का दिख रहा है क्या? हाँ, CPU एंड कोड ROM डेटा बस इज 16 बिट डेटा बस, ओके। सो ये देखो 16 बिट वाइड ROM, जो है आपके A0 to A19 20, मतलब 1 मेगाबाइट का जो है ये एड्रेस बस दिखाया हुआ है, और ये डेटा जो है ये सेपरेट है ना, क्योंकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर है इसमें, आपके डेटा बस मतलब सेपरेट है और इंस्ट्रक्शन सेपरेट है। इंस्ट्रक्शन आपका कितना था 21, मतलब 21, और ये आपका 16 बिट वाइड है, 805 में 8 बिट वाइड है।
तो आपको देखो यहाँ पर जो है ये जो रॉम का मेमोरी जो फेचिंग हो रहा है, ये रॉम मेमोरी फेचिंग जो है ये 2 बाइट्स एट ए टाइम, ये 1 बाइट 0 और 1 दोनों इकट्ठे फेच कर सकता है। प्रोग्राम रॉम विड्थ फॉर द PIC18 इज 16 बिट। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। 8 बिट में जो है 1 बाइट 3 4 5 6 ओके। विड्थ इन PIC18 इंक्रीज। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज स्पीड हो रहा है। सिंपल एडवांटेज तो ये, रीजन ऑफ रॉम 16 बिट्स वाइड इज इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर। इसी वजह से क्या है कि दे वांट टू हैव इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, मैचिंग विद इंस्ट्रक्शन विड्थ। इसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है मोस्टली 2 बाइट्स है, तो एक ही साइकिल में आपका मशीन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्योंकि रिस्क बेस है ना रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, तो उसमें ये मैच करेगा। इंस्ट्रक्शन फेच है सिंगल साइकिल। एज रिस्क आर्किटेक्चर फिलोसॉफी इन PIC ऑल इंस्ट्रक्शंस आर 2 और 4 बाइट। सो आपके यहाँ 1 मशीन साइकिल लगेगा, 2 लगेगा। PIC16 ROM इज 14 बिट। हाँ, ये 16 वाली फैमिली है ना। ये 18 में आपकी वही है डिफरेंस की, 18 में आपका 2 बाइट 16 बिट वाइड था, इसमें 16 में 14 बिट वाइड है, 12 में 12 बिट वाइड है। ऑल्सो RAM इज 8 बिट इन ऑल PICs एंड बाइट एड्रेसेबल। RAM आपका 8 बिट ही है, ठीक है, सिर्फ ROM है 16 बिट बाइट एड्रेसेबल। अच्छा, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है PIC18 में, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस टू टेक नोट ऑफ इन केस ऑफ PIC18। एवरी प्रोसेसर हैज मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा। हाँ, ओके। कोड प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू CPU एंड डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, CPU यूजेस बसेस टू एक्सेस कोड एंड डेटा। तो कोड और डेटा दोनों एक्सेस करने के लिए तो इनके पास सेपरेट बसेस है, कॉमन बस सिस्टम नहीं है लाइक वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है। एंड ईच हैड टू वेट फॉर अदर टू फिनिश, क्योंकि उसमें तो वेट करना पड़ेगा। सेपरेट बस सिस्टम इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये आई थिंक दिस पिक्चर विल मेक यू क्लियर कि वॉन न्यूमैन में तुमने देखा भी होगा पहले शायद। तो ये आपका डेटा रैम का देखो, रैम का जो है ना, रैम में 8 बिट ही है, ठीक है। रॉम जो है आपका 16 बिट है, ठीक है, और वो एड्रेस बस है। एंड दोनों के बस सेपरेट है, एड्रेस बस इंस्ट्रक्शन बस सेपरेट है आपका, और डेटा बस सेपरेट है। और आपके 8051 में 8 बिट वाइड डेटा है और एड्रेस बस 16 बिट है, which is but and that is a common one Neumann architecture, उसमें common bus system है। So these are the major differences. RISC architecture features fixed instruction size, thus decoding is fast. Larger number of registers, PIC has 32, thus PIC में 32 bit instructions है, 8051 में more than 100 instruction sets है। Avoids large stack, use of 256 byte bank serves the purpose. Small instruction set, thus programming is in assembly is difficult. दस डिफेंडर ऑफ सिस वाले बोलते हैं एक्चुअली कि रिस्क में आपके पास स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट है, जैसे 32 है 35 है, तो कहते सिस्क वाले ये डिफेंड करते हैं कि भाई सिस आर्किटेक्चर वाले जैसे कि वी हैव लॉट ऑफ लार्ज एनरिच्ड इंस्ट्रक्शन सेट, तो असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ रिस्क, दिस इज व्हाट दे से। बट कंप्लीट है, बट परफॉर्मेंस जो है रिस्क में ज्यादा अच्छा आता है। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, PIC16 has 35 instructions, PIC18 has 75. अच्छा, more than 95% instructions are executed with only one clock cycle. PIC में जो है because of this RISC architecture and each instruction is 1 or 2 byte wide, और because of that ROM 2 byte structure, एक या दो इसमें ही मशीन साइकिल में हो जाता है। RISC has separate buses for data and code, ये हमने देख लिया, separate buses है। तो 40 to 61 ट्रांजिस्टर कंज्यूम GPU और RISC, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना वहां पर, इसलिए ज्यादा। ओके, प्रोग्रामिंग वेरीज विद फैमिली, पोर्ट्स के बारे में। ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट प्रोग्रामिंग, चलो इसमें आपका वो अभी ट्रीस और वो सब कुछ आ जाएगा कैसे करना है।
तो इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग में आपके एक तो क्या है कि आपको पोर्ट्स की फैमिलिटी होनी चाहिए। 8051 में आपके पास 4 पोर्ट है और आपको फैमिलिटी की भाई आपका पोर्ट 0 ओपन रहना है, ओपन कलेक्टर है, तो यू नो वेल कि अनलेस यू कनेक्ट ओपन वहां पर पुल अप रजिस्टर नहीं लगाओगे तो आपकी प्रोग्रामिंग सही से काम नहीं करेगी। सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू हैव फैमिलिटी विद द पोर्ट्स। मेनी पोर्ट्स फॉर IO ऑपरेशंस वैरीज विद फैमिली, जैसे 458 में 40 पिन चिप्स है, 33 पिन है, 5 पोर्ट्स है, ABCDE। अनलाइक योर पोर्ट 0 1 2 3 यहाँ पर पोर्ट ABCD नॉमेनक्लेचर यूज होता है। सो यू कैन सी यहाँ पर जैसे RB रजिस्टर B, ये रजिस्टर बोलते हैं उसको, ठीक है ना, RB इज रजिस्टर B, ठीक है। सो रजिस्टर B D A B और बाकी मल्टी फंक्शनलिटी है। दिस इज 40 पिन चिप, तो ये तो इट इज अवेलेबल, नेट से भी आप देख सकते हो पिन्स। अब पोर्ट्स देखिए, अगर आप 18 पिन का पैकेज लेते हो, A और B अवेलेबल है पोर्ट्स, 2 पोर्ट्स ही अवेलेबल है। और अगर मैं हाई एंड का ले लूँ PIC 18 सीरीज, तो उसमें L तक आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोर्ट्स हो सकते हैं आपके पास, 11 पोर्ट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब पोर्ट्स आपके पास जब तक नहीं है तब तक आप रियल वर्ल्ड के साथ इंटरफेस नहीं कर सकते, एंड ऑल दिस कंट्रोलर्स आर मेंट फॉर हैविंग दी पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल्स। तो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल आप कब कर सकते हो, जब पोर्ट को उसके साथ इंटरफेस करोगे। अब पोर्ट को इंटरफेस कैसे करेंगे, देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि पोर्ट एज अ इनपुट एक्ट करेगा कि आउटपुट एक्ट करेगा। ये दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट द पोर्ट्स। तो इनपुट आउटपुट टू बी प्रोग्राम्ड, कि उसको इनपुट प्रोग्राम करना है, आउटपुट प्रोग्राम करना है। ईच पोर्ट हैज सम, अच्छा वो ड्यूअल फंक्शनलिटी तो है ही है, कुछ पोर्ट्स में आपके ADC और वो मल्टीप्लेक्स ही है। तो ईच पोर्ट में क्या है कि ये तेरा 3 SFRs, यानी जब आपको रोम रैम का वो दिखा रहा था SFR स्ट्रक्चर, तो उसमें तब मैं बता रहा था कि देयर आर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, है ना, पोर्ट X, ट्रिस एंड लैच, ठीक है। पोर्ट A है तो A आ जाएगा X की जगह, पोर्ट A, ट्रिस A एंड लैट A। और ट्रीस क्या है कि ट्राई स्टेट है, और लैच LAT इज अ लैच। रीसेट में क्या करते हैं, ट्रीसीज जैसे ऑल इनपुट्स आर 1। 805 में भी जब हम रीसेट करते हैं तो पोर्ट का स्टेटस क्या होता है, ऑल पोर्ट्स आर सेट टू 1, ठीक है। अब ट्रीस रजिस्टर में जो क्या रोल प्ले करता है इसमें, कि वो इट डिसाइड्स द डायरेक्शनैलिटी, कि पोर्ट एज अ इनपुट एक्ट कर रहा है कि आउटपुट एक्ट कर रहा है ना। पोर्ट को आप इनपुट कह सकते हो, आउटपुट कर सकते हो। पोर्ट इनपुट, आउटपुट अगर करना है डेटा, तो आप ट्रीस को आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पोर्ट पे लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, इट इज आउटपुटिंग पोर्ट पिन पे। और पोर्ट से अगर रिसीव कर रहे हो, समथिंग इज रिसीव्ड, लेट्स से सेंसर का कुछ डेटा रिसीव हुआ, सो दैट इज इनपुटिंग टू द डेटा। सो ट्रीस उस टाइम पे 1 करना पड़ेगा। इफ यू मेक ट्रीस 1, then the input it will accept whatever is coming to port pins as a input, ठीक है। और ट्रिस के बगैर आप वो डेटा, क्योंकि वो ट्राई स्टेट है ना, हाई इंपिडेंस स्टेट है उसमें, तो वो डेटा प्रोसेस नहीं होगा पोर्ट पे। अगर कुछ भी आ जाए, ना इनपुट होगा ना आउटपुट होगा, ट्रिस को अगर प्रोग्राम नहीं करोगे। बाय डिफॉल्ट तो इनपुट करेगा वो, क्योंकि 1 सेट है बाय डिफॉल्ट व्हेन इट इज पावर्ड ऑन। टाइम डिले, ओके। तो इसमें आप देखोगे कि मैंने पहले वर्किंग रजिस्टर में 0 मूव कराया, और फिर मैंने इसमें ट्रिस बी रजिस्टर है, इसमें मैंने 0 कर दिया था। पोर्ट 0 बी क्या एक्ट करेगा, 0 कर रहा हूं मैं, पोर्ट बी को क्या करेगा, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है ना। जब 0 कर दिया मैंने ट्रिस को, तो आउटपुट एक्ट करेगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये FF जो है ये वर्किंग रजिस्टर में डाल के, और फिर मैंने पोर्ट बी पे क्या कर दिया, इसको राइट किया, तो आउटपुट करे तो राइट ही करूंगा ना मैं। क्या होता है, मूव वर्किंग रजिस्टर, W तो वर्क रजिस्टर हो गया, और ये फॉरवर्ड F, ठीक है। पुट मतलब बेसिकली वी आर पुटिंग FF दिस 5 ऑन पोर्ट B, हमने उसके ऊपर, हाँ यही ना, ये WF
हाँ, ये जो था हमने जो इसमें ले आए थे वर्क रजिस्टर पे, ये हमने इसके ऊपर राइट किया फॉरवर्ड, हाँ इस पे गया वो, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर मैंने पोर्ट बी पे ये राइट कर दिया, क्योंकि अब आउटपुट एक्ट करना शुरू, फॉरवर्ड उसके ऊपर हम पुट कर रहे हैं, वी आर पुटिंग दैट वैल्यू टू दैट। पहले मैंने उसको आउटपुट डिफाइन कर दिया, ट्रिस को डिफाइन करके, और फिर ट्रिस को किया, तो अब मैं पोर्ट पे लिख सकता हूँ। अब मैं पोर्ट पे कुछ भी रखूंगा तो वो आउटपुट जाएगा, आई एम राइटिंग ऑन द पोर्ट, ठीक है। पहले वो तब हुआ कि जब मैंने ट्रिस को 0 कर दिया। और कॉल डिले तो चलो, और ये क्या है, वर्क रजिस्टर में ए डाल दिया, और फिर पोर्ट में अब जो भी मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट नाउ ऑन द पोर्ट। द एग्जाम्पल इज जस्ट टू टेल यू कि अब नाउ आई कैन राइट द पोर्ट। पोर्ट पे राइट कैसे करना है, पहले ट्रिस को मैंने 0 करना है, दैट वाज द थिंग। आउटपुटिंग राइटिंग टू ए पिन। अच्छा, पहले हम कुछ पिन के ऊपर राइट करना है ना, उसके कुछ बेसिक्स है। जैसे पी टाइप है, तो पी टाइप अगर ट्रांजिस्टर है, क्योंकि दिस ऑल कंट्रोलर्स आर मेड आउट ऑफ ट्रांजिस्टर, एंड सी मॉस है तो फेट मॉसफेट्स वगैरह से बने हुए। तो देखो पी टाइप है तो इसमें 1 लिखूंगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और एन टाइप है तो 1 से ऑन हो जाएगा, 0 से ऑन होगा, 1 से ये इधर ऑन होगा, ये है। तो अभी स्टेट जो है यहाँ पर अगर मैं इनपुट 5 दे दूं तो क्या आएगा, मतलब ये हाई है, ठीक है। 1 दिया तो ये क्या है, क्या आएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, और ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन है तो क्या है, कनेक्टेड का है, ग्राउंड पे है, तो यहाँ ग्राउंड अवेलेबल हो गया, तो आउटपुट पे 0 आ गया। सो मैं आउटपुटिंग, इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द पोर्ट पिन, तो बफर पे मैं कुछ भी जो डेटा बस पे डालूंगा तो पिन पे तभी आएगा, ठीक है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कैसे वो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। सो CMOS स्टेट्स फॉर PN एन ट्रांजिस्टर। ये है आपका पिक का पोर्ट का स्ट्रक्चर। आउटपुटिंग राइटिंग 0 टू ए पिन, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने ट्रिस को क्या कर दिया, आउटपुट करना है तो क्या करना है, ट्रिस को 0 कर दिया। जस्ट एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून, हाँ 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 हाँ, एक्सलेंट एक्सलेंट, बढ़िया बढ़िया। हाँ, 3 बजे करके बस वो फॉर्मेलिटी है। हम्म, हम्म, हाँ ठीक है ठीक है, लंच कर लीजिए, लंच के बाद फिर देख लेते हैं ना। ठीक 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 ठीक, बाय बाय। तो आप आउटपुट करना है ना, आपने 0 लिखना है, तो ट्रिस को क्या करोगे, 0 करोगे, आपको पोर्ट पे आउटपुट करना है, यू वांट योर पोर्ट टू एक्ट एज आउटपुट। ये ट्रिस 0 मैंने कर दिया, तो ठीक है, ट्री स्लैश में 0 कर दिया, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर गया तो क्यू पे 0 आ गया, है ना, ये 0 यहाँ पर आ गया, दिस इज योर और, ठीक है, ये 0 आ गया। और मुझे पोर्ट पे अब आउटपुट करना है, तो पोर्ट पे क्या करूंगा, राइट करूंगा ना, ठीक है ना। तो मैंने पोर्ट पे ये 0 राइट किया, लेट्स से, ठीक है, 0 राइट किया, तो ये 0 0, और यहाँ पर 1 आ गया क्यू बार, और ये 1 0 क्या हो गया, और है तो 1 आ गया, और पी को मैंने 1 दिया तो क्या होता है, ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया। और यहाँ पर मेरा 0 था ना, ये 1 आ गया यहाँ पर क्यू बार, ठीक है, मैंने ट्रिस पे 0 दिया था ना, क्यू बार 1 आ गया, 1 यहाँ पर ये एंड गेट है, ये 1, और यहाँ पर क्यू बार ये 1 आ गया, एंड में 1 1 क्या होता है, 1 आ गया। और ये 1 एन टाइप को मैं जब 1 देता हूँ लॉजिक हाई, तो ये ऑन हो जाता है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। सो मैंने देखो यहाँ पर क्या आया, 0, बिकॉज इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ग्राउंड इज 0, ठीक है। और मैंने दिया क्या था, राइट क्या करना था मुझे, सो जय मैंने राइट करना था, 0 राइट किया करना था, तो पोर्ट पिन पे 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिस को ऐसे 0 किया था। सो पोर्ट पे मैं राइट कर पा रहा हूं। सो आउटपुटिंग राइटिंग 0 टू ए पिन इन पिक 18 इस तरह से होता है। ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, मतलब पिक चिप के अंदर ऐसे होता है पोर्ट का स्ट्रक्चर। सर 8 बिट्स है ना,
है? Trust is 8 bit. हाँ हाँ, ठीक है। ये एक सिंगल पिन का बता रहा हूँ, सिंगल पिन है ये सिंगल बिट। एक सिंगल बिट को हम कैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसे ही पूरा होगा, ये पूरे पोर्ट का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि पहले हम सर ट्रस्ट को 0 कर देंगे ना, हाँ हाँ, उसके बाद डेटा नेक्स्ट मशीन साइकिल में डेटा भेजेंगे। ट्रीस इज 8 बिट रजिस्टर, ट्रीस को मैंने 0 भेजा, तो ये इंटरनल, अब सिंगल पिन का बात कर रहे हैं, इसको सिंगल पिन समझना है ना, ठीक है। अब मैंने उसके बाद में डेटा पोर्ट पे राइट किया, अब ये दिखा रहे थे ना एग्जांपल, ये एग्जांपल था, ट्रीस को किया, इसके बाद में पोर्ट पे भेजा, पहले ट्रीस पे राइट किया फिर पोर्ट पे राइट किया, तो अब यही समझो तुम, इसको जो है मैंने ट्रीस पे राइट किया और पोर्ट पे राइट कर दिया। तो बात समझने वाली ये है कि जब मैं ट्रीस पे ऐसे करता हूँ तो 0 लिखता हूँ, तो क्या 0 पहुंचता है? इंटरनल पूरी जो फंक्शनैलिटी है, ऑन ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स होने हैं, क्या हो रहे हैं वो, ये चीज है। बिकॉज दिस पोर्ट्स आर ऑल मेड ऑफ लैचेस एंड ट्रांजिस्टर्स एंड ऑल दिस, ठीक है। सो एक रजिस्टर्स है, ट्रीस इज रजिस्टर है ना, ट्रीस लैच है, ये these are all registers। so latch, ये लैच करेगा डेटा को, ठीक। यहाँ पे पहले हम ट्रस्ट को 0 कर देंगे, ट्रीस के 0 कर दिया, ठीक है, और whatever is the data in data line, हाँ, that will not be taken into account because जो क्लॉक आएगा वो इसका आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा ट्रस्ट लैच में, right नीचे, signal will be given to that latch and that 0 will go into that flip flop, right? कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, ये 0, ठीक है। हाँ। अगर डेटा लैच में इससे पहले 1 था, ये 1, ये यहाँ पर 0 ऐड किया तो यहाँ 1 है, 1 है ये। मेरे पास पहले डेटा 1 इन माय डी लैच, ठीक है, पहले मेरे पास अगर डी लैच में 1 है, उसके बाद मैं ट्रस्ट को 0 कर रहा हूँ, so Q will be 0 in trust latch, Q bar will be 0 in that latch also, data latch, isn't it? So that OR gate output will be 0 because of that thing, that P transistor will turn on. नहीं, वो जुनैद, उसको पता है अभी जो है ना, ये एक और, अभी हमने क्या किया था, राइटिंग क्या किया था 0, ये राइटिंग 1 पे आऊंगा ना तब वो होगा फंडा। अभी मैं स्टेट ये कंसिडर कर रहा हूँ, मेरी स्टेट्स अभी मैं 0 राइट कर रहा हूँ बफर पे, ठीक है, तब क्या आउटपुट होना है, और जब मैं बफर पे 1 राइट करूंगा डेटा बस पे, तब ये फिर आएगा। ये दीज आर फॉर ए गिवन स्टेट्स, कि मैंने बफर पे अभी 0 राइट करना है, मुझे पोर्ट बिट पे 0 राइट करना है, तो कैसे फंक्शनैलिटी हो रही है। तो अभी यही स्टेट्स मान ले, जो स्टेट्स है, मैंने यहाँ 0 राइट किया, डेटा बस पे 0 राइट किया, और मैंने ट्रीस पे 0 राइट किया, तो क्या हो रहा है, इसके हिसाब से चलना है, देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। अभी मैं 0 राइट कर रहा हूं, अब नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो, इसमें मैं 1 राइट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन राइट में कर रहा हूं, राइटिंग ऑन द पोर्ट, तो इसमें ट्रीस अगेन 0 ही है, ट्रीस अगेन 0 आ गया। अब ट्रीस जब मैं 0 देता हूं, देखो क्या हो रहा है, ट्रीस 0 दे दिया यहाँ पे, तो मैंने जो है मेरे पास यहाँ पर क्यू बार 1 हो जाता है और ये क्यू 0 हो जाता है। अब आते हैं, मुझे क्या करना है, 1 राइट करना है, मैंने डेटा बस पे 1 दिया, तो डी पे क्या आया, 1 आ गया, है ना, ठीक है, 1 आ गया ना, तो 1 आ गया तो क्यू 1 हो गया, तो क्यू बार 0 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया, तो अभी मेरा और है, इसने 0 दिया और इसने क्या दिया था, 0 दिया था, 0 है, आउटपुट 0 है, तो ये ऑन हो जाता है। अब मेरा ये वीडीडी को कनेक्ट है, तो ये 1 1 हो गया, तो आउटपुट ऑन है, तो ये आउटपुट यहाँ पर 1 आ गया, है ना। तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट था कि मैं पोर्ट पे अगर 1 आउट, आई वांट टू आउटपुट 1 टू ए पिन, मैंने इसलिए डेटाबेस से 1 लिखा था कि आ गया वो 1। तो पॉइंट ये है कि अगर हम डेटाबेस पे कुछ लिखते हैं, तो क्या पोर्ट बिट पे वो 0 आना है तो 0 आता है, और 1 आना है तो 1 आता है कि नहीं आता है, और इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, ट्रीस रोल प्ले कर रहा है। अब इसके बाद में शायद इनपुट का भी एग्जांपल होगा, ये आउटपुटिंग का था। इसके में अगर ट्रस्ट 1 होगा, हाँ, ट्रेस मतलब इनपुट वाला केस हो गया ना। नहीं, अगर यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रेस इज 1, so Q will be 1, ट्रेस 1 हो गया, क्यू 1 हो गया, हाँ, एक मिनट, आई थिंक दिस विल सॉल्व प्रॉब्लम प्रोबेबली। ट्रेस 1,
सर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फन ऑफ कीपिंग दिस लैच, क्योंकि अगर हम 8051 की बात करें, ठीक है, वहाँ पे तो ये फंडा है नहीं, so नहीं, उसके अंदर भी लैचेस होते हैं. So that latch is not present. The thing is that you have to send a 1 to the port, isn't it? To make it as an input port, you have to send 1. हाँ. Right. उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो अंदर वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो ऑफ हो जाता है. हाँ. So तो डेटा आपके पास जो पिन से आ जाता है वो सेकंड पाथ फॉलो करता है, जो इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है. हाँ. यही है ना, वो जिस हमने क्या किया था उसमें 8051 में क्या, ये जो ट्रांजिस्टर्स है और ओपन ड्रेन वाले कुछ केसेस है, तो वहां पर ट्रिस की कोई कंट्रोल ऐसा कोई है नहीं कि जो इनपुट आउटपुट कंट्रोल करेगा. तो इसमें इसलिए ये लैच तो होगा ही नहीं, ट्रिस वाला लैच उसमें नहीं है, इसलिए बाकी उसमें स्ट्रक्चर लेकिन चेंज हो जाते हैं कि पोर्ट 0 में थोड़ा चेंज है, ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह नहीं है कुछ, तो देर आर चेंज. तो इसमें पूरा ये कंट्रोल करता है. ट्रिस वाला देखो है, सेम पोर्ट एंड मोर और जैसे वो डायरेक्शनलिटी आपको वहां पर ओपन ड्रेन वाला फंडा था पोर्ट 0 में, वो मतलब यहाँ पर क्लियर कट कंट्रोल दिया हुआ है ना, और वहां पर तुम्हें ओपन ड्रेन का वो रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे. पोर्ट 0 में तो है ही है वो केस. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक लैच क्यों बढ़ा क्यों दिया. क्योंकि वहां पे भी विदाउट दिस थिंग सेम थिंग कैन हैपन. उसका मैं एग्जैक्टली खोलूं ना, देन विल नो, बट देयर इज अ क्लियर कट कंट्रोलेबिलिटी, डायरेक्शनलिटी जो है ना क्लियर कट है इसमें, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको एकदम रिलायबिलिटी है हर चीज की, परफेक्ट रिलायबिलिटी है. वहां पर भी हम जब इनपुट एक्ट कराना है तो हम 1 लिखते हैं, है ना, ठीक है, और वहां पे हम किससे करते हैं उसको, वहां पे जब 1 लिखना है तो वहां पे हमारे पास एक ही लैच आ जाती है, राइट, डी लैच वहां पे एक ही लैच है. और हमारे पास 2 बफर्स रहते हैं, एक पिन को रीड करने के लिए, एक पोर्ट को रीड, करेक्ट. यहाँ पे तो हमने तीन फ्लिप फ्लॉप्स लगा दिए, 1 2 3. हाँ, उसका है, चलो आई डोंट हैव हियर, बट डेफिनेटली इसमें इंक्रीज तो है लैच का, बट देयर इज अ गुड डायरेक्शन कंट्रोल एंड बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी भी तो यहाँ बहुत सारी है ना, यहाँ पे पोर्ट्स बहुत सारे हैं, ड्यूअल फंक्शनलिटी बहुत सारी है. सो आई थिंक टू हैव बेटर कंट्रोल ऑफ ऑल दिस, सो यू विल नीड सम कंट्रोल ब्लॉक हियर. यू आर राइट इन क्वेरिंग दैट कि इसमें हमारा एडिशनल. So I feel looking at the complexity of the architecture, जितने सारे इसमें ports हैं और dual functionality, इतनी functionality उसमें तो है नहीं. So probably looking at the complex architecture, or you can say enhance resources available, we will need, I think, clear cut definition कि कौन input act कर रहा है, कब act कर रहा है. So वो इसमें होगा. Okay. So अब ये inputting का आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर है ना. इनपुटिंग में हम ट्रीस में 1 लिखेंगे, ठीक है, तो 1 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफ हो गया, 0 है ना, दोनों ऑफ है ये, तो ये वाला पाथ आपका बेसिकली कट ऑफ ही हो जाता है, ये वाला पाथ. और ये जो है इस तरह से आप इनपुट जाएगा, यहाँ पर आएगा ना 0 आ गया, 0 0 0 0 करते करते यहाँ पर आपके 0 आ गया. बस में आपने रीड कर लिया 0. रीडिंग 0 फॉर्म में पिन, रीडिंग 1 फॉर्म में पिन ही वैसे ही है ना. आई थिंक डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस ये पाथ ऑन हो गया ना आपका, ये पाथ तो क्लोज ही हो गया यहाँ पर से, ठीक है. प्रोग्राम्स फॉर इनपुट आउटपुट, चलो ये इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल प्रोग्राम्स है. इसमें अपने ट्रिस को जो है 0 मूव कर दिया तो इनपुट हो गया. आई थिंक दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड ना. ट्रिस को जब हमने 1 कर दिया तो 0 कर दिया था, तो 1 कर दिया इनपुट हो गया, और 1 से इनपुट हो रहा है, 0 से आउटपुट हो रहा है, तो दिस इज ओके. पोर्ट भी एज ए इनपुट. टाइमर्स तो कवर करने नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कवर, बट वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग हियर.
एक मैं बस टाइम इज वेरी शॉर्ट, एक्चुअली टाइम इज ओवर. मैं चाह रहा था कुछ चीजें और कवर करूं बट टाइम विल नॉट अलाउ अस. जैसे रियल वर्ल्ड इंटरफेसिंग में आउटपुट डिवाइसेस जो है, एलडी का आपने किया हुआ है इंटरफेस, है ना. इसमें सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि एनोड कैथोड होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको लगाना है. 8051 के साथ में अगर आपने किया हुआ है तो सेम इज द केस विद द पिक. ओनली आपकी इंक्लूड वाली फाइल जो है रेक, वो वहाँ रेक 51.hex करते थे, यहाँ पिक वाला करना पड़ेगा. इन्वर्टर लगाना जरूरी है. इन्वर्टर क्या है कि आप सोर्स और सिंक कैपेसिटी जो है ना, कि आपकी करंट की हर एक पोर्ट्स की, बिकॉज दीज आर मेड फॉर कंट्रोलिंग, ओके, दे कैन नॉट वर्क लाइक ए ड्राइवर. तो आपको एडिशनल ड्राइविंग कैपेबिलिटी जो है, बिकॉज एवरी एलईडी विल टेक 10 मिली एम्पियर, विदाउट ये भी चल जाता है. We should not use for source or syncing anything. It should be used for only controlling. For sourcing or syncing, we should connect this kind of additional drivers. जैसे यहाँ पर आपको क्या थोड़ा ये कर रहा है, या ये वाला केस है जिसमें आपने वो लगाया हुआ है 2-4, ये एक बफर लगाया हुआ है इसमें. So जो because microcontrollers are not meant for sourcing or syncing, क्योंकि their sourcing and syncing capability is very restricted, like 10 milliampere or like that per pin or per port, like that, and that is given in the data sheet. So they are meant to give the controlling job, controlling operation. आपको जो sourcing करना है, syncing करना है, source करना है, तो आपको it should be sourced from the power supply, है ना. तो बफर जो है या इस टाइप के आईसीज जो है, they will allow you कि जो एडिशनल करंट सोर्स और सिंक करना है, सो इट विल हैपन थ्रू दिस आईसीज एंड इट विल नॉट डैमेज द पोर्ट्स. क्योंकि यहाँ से अगर एडिशनल, क्योंकि हर एक पोर्ट का एक टॉलरेंस लेवल होता है सोर्सिंग और सिंकिंग का. इफ यू विल क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड देन द पोर्ट पिन विल बी डैमेज्ड. इसीलिए वी डू दैट जॉब थ्रू द बफर आईसी. जैसे यहाँ 244 है, वहां वो इन्वर्टर देख रहे थे आप, है 244, नहीं दिस इज नॉट. ये देखो ना, बफर चिप 7424 कैन बी यूज्ड. ठीक है, पहले से अगर देखना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे if we send a 1 to the port, right, this LED will turn on. It will turn on, correct, right, true, it will turn on. अगर हम ये इन्वर्टर वहाँ पे लगाए ही नहीं, फॉर एग्जांपल लगाए नहीं इन्वर्टर, तो भी ये काम करेगा. If we send a 1, which one is best? I'm saying that which one is this? If you connect, obviously, if I connect a 1, if I connect it directly, when I send 1 to it, this will turn on. This will turn on. When I will send 0 to it, it will turn on. Turn on. When I am sending 0, that time my microcontroller will act as a sync. Sync, correct. Right. So is this the better way or that one? Without. Actually, we always think in terms of safety. अब घर में हमें काफी जगह कुछ लगाना होता है एज ए सेफ्टी, कि भाई फ्यूज लगाए, कुछ डायरेक्टली कनेक्शन कर देते हैं. काम तो तब भी होता है, बट देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड चांसेस ऑफ डैमेज. तो अगर वो मोर देन दैट, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ये 330 ओम जो है, I इज इक्वल टू V बाय R, है ना, हाँ, 5 माइनस 1.6 या 2.2 वोल्ट अक्रॉस एलईडी ड्रॉप होता है. सो योर 5 माइनस दैट इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट और समथिंग डिवाइडेड बाय, अगर आपने I कैलकुलेट करना है, V बाय R करना है, तो आप समझो 10 मिली एम्पियर करंट लेता है आपका एलईडी नॉर्मली 10 या मोर देन 10. सो आप 10 मिली एम्पियर वहां रखो एंड देन यू फील दैट यू विल फाइंड दैट 300 ओम टू सम 1000 ओम कुछ वैल्यू निकल के आएगा. इफ समबडी इज नॉट नोइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस, अगर वो कुछ ऐसा लगा देता है यहाँ पर, बिल्कुल 100 ओम कर दिया, 10 ओम कर दिया, एंड देन देयर इज रिस्क ऑफ डैमेजिंग. सो देयरफॉर फॉर सेफ्टी वी डू दिस. द सेम इज द केस यहाँ पर भी. चलो ज्यादा लगा दिए, अब एक में भी ठीक है, आपका पोर्ट एक का दे देगा, 3-4 एलईडी कनेक्ट कर दोगे तो फिर वो सबको एक को 10 मिली एम्पियर चाहिए. स्टिल देन एक तो टोटल पोर्ट की कैपेसिटी होती है कि इट कैन ओनली सप्लाई 20 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर, फिर तब भी डैमेज हो सकता है. सो फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए हमें. और 7 सेगमेंट की बात ले लो तो हर एक विल 10 मिली एम्पियर, तो साथ के साथ 70 मिली एम्पियर खींचेंगे आपका करंट. And as I have been saying repeatedly, controllers are not meant for sourcing or syncing. They are meant for peripheral interface control. They only do controlling job. The same goes here. आपने
ये 7 सेगमेंट लगा दिया ABCD, यहाँ पर एक पर्टिकुलर 300 ohms डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी दैट यू वांट. लेस लगाओगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली, सो यू विल गेट मोर इंटेंसिटी. तो यहाँ पर इसके थ्रू, बफर के थ्रू इट विल बी टेकन केयर ऑफ. तो सभी जो फाइनली करंट कहाँ से आएगा, सप्लाई से आके इसको मिलेगा. एंड दिस इज कॉमन कैथोड, तो एनोड यहाँ पर मिल गया एंड दिस विल ग्लो. एंड इसके कोड्स है, आपको जो है ABCD जो भी ग्लो करना है, फॉर एग्जांपल 0 राइट करना है तो A ग्लो होना चाहिए, BCD ये सब एक्सेप्ट G सब 1 होने चाहिए. तो यही इसके हिसाब से कोड बन जाता है. ये 7E सबको मैंने ये 1 कर दिया है 0, और MSB आपको कुछ मान लो, इसको 0 मान लो MSB, तो यहाँ पर 7E हेक्स एक कोड निकल के आ जाएगा. ये कोड अगर आप लिखोगे पोर्ट पे तो उन सब पोर्ट पिन जहां पर ये 1 कनेक्टेड है, इन सब पोर्ट पिन पे वो चला जाएगा 1 इस पे, इसको 0 जाएगा तो वो ऑन हो जाएगा. अगर हम सर 1 ही लिखते तो आगे अगर हम वो लगा दें डिकोडर. नहीं, डिकोडर आपको, डिकोडर किस लिए यूज करते हो आप BCD सेगमेंट डिकोडर. हाँ, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो डायरेक्ट कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके, ये तो केस था सिंगल एलईडी का 7 सेगमेंट का. तो 0 to 9 डिजिट्स आप कर सकते हो. एलईडीज आर इसीलिए, आई थिंक पर्पस तो आप लोग पता ही है कि इसलिए यूज करते हैं. अच्छा, मोर देन 1 करना है तो लेस देन 1 सेकंड के लिए अगर आप टाइम मल्टीप्लेक्सिंग करोगे ना, तो विदाउट योर आई कैचिंग कि भाई, एंड यू कैन डिस्प्ले मल्टीपल नंबर्स ऑन मल्टीपल डिस्प्लेस. लेस देन 1 सेकंड में अगर आपने पूरे कोड्स भेजे उसको, तो ऐसे एक इफेक्ट क्रिएट होगा कि आप लोग एट ए टाइम ही डिस्प्ले हो रहा है. लेस देन 1 सेकंड आपको ऑन ऑफ करते हो उसको. तो ये ट्रांजिस्टर्स हम लगाते हैं उसके लिए, है ना, कॉमन कैथोड. हाँ, जैसे हमारा डिजिटल क्लॉक है. हाँ. अब मल्टीपल BCD डिजिट्स काफी कामों के लिए यूज होते हैं, कि टाइम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करते हैं. टाइम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या है कि 1 सेकंड के अंदर आपने सबको मिनिमम टाइम में सबको ऑन ऑफ किया, उसके लिए ट्रांजिस्टर लगाया कोई, ठीक है, सिंकिंग के लिए. ट्रांजिस्टर या सिंकिंग के लिए आपने कॉमन इमीटर लगाया, NPN लगाया, ठीक है, NPN, ठीक है. तो NPN ट्रांजिस्टर जैसे इसमें दिखा रहे हैं, NPN ट्रांजिस्टर 2N = NPN ही है. इट कैन सोर्स, इट कैन सिंक अप टू 300 मिली एम्पियर ऑफ करंट. तो जब भी ये 0 रेजिस्टर मस्ट बी, कॉमन कलेक्टर जो है इस पुल डाउन, रजिस्टर मस्ट बी सच दैट ट्रांजिस्टर दिस बाय टर्निंग. यहाँ पर देखते हैं. तो ये जब हम इसको ऑन करेंगे, ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन स्टेट पे ड्रिवन हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हमें रजिस्टर्स लगाने चाहिए यहाँ पर. एंड देन यहाँ ये 0 हो जाएगा तो दिस विल कॉमन कैथोड, इसको मिल गया. यहाँ पर आपको सेपरेट कोड देना है तो ये ऑन होगा. तो ये सब आपको टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के साथ एक ऑन करके करने हैं. और ये टोटल करंट जो ड्राइव करेगा 70 या 60 मिली एम्पियर करेगा, पर को 10 मिली एम्पियर मानते हैं. तो ये सिंकिंग कैपेसिटी हमें ट्रांजिस्टर से आ गई, या सोर्सिंग कैपेसिटी यहाँ से आ गई. और ये है इसके कोड. फॉर एग्जांपल आपको ये डिस्प्ले करना है 6, पोर्ट डी पे ये भेजना पड़ेगा, पोर्ट बी पे ये. तो पर्टिकुलर सेगमेंट्स को आपने ग्लो कराना है उसको, और साथ के साथ आपका कॉमन कैथोड जो पॉइंट है वो भी आपने सिंक कराना है. कॉमन कैथोड को भी आपने ट्राई कराना है ना. ये इसका C प्रोग्राम है, इसी का है नहीं. हाँ, तो इसमें आपने ये कोड्स डाल दिए, जो कोड ऊपर दिखा रहा था अभी मैं. ये कोड जो है ये आपने एज ए लुकअप टेबल यहां डाल दिए. ट्रीस को आपने क्या कर दिया, आउटपुट पोर्ट कर दिया, क्योंकि बी पे क्या है आपका, बी पे क्या था, डी पे हमको आउट करना है, और डी पे भी वही करना है, डी और बी दोनों पे वही करना है. सो दोनों को हमने आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर कर दिया. तो ट्रिस पहले किया तभी वो होगा. और हमने यहाँ पर जो है, अब ये जो है, ये वाले जो एरेस थे, ये हम इसको पोर्ट, दोनों पोर्ट पे भेज रहे हैं. और बीच में देखो टाइम जो है 0.5 मिली सेकंड का किया है. 0.5 मिली सेकंड का आप टाइमर यहाँ लगाओ, और अगर भेजोगे तो स्टिल इट इज लेस देन 1 सेकंड. जैसे हमारी आंखों का जो है ना, कि लेस देन 1 सेकंड हम जो भी करेंगे कैच नहीं कर पाएंगे, ऐसा इफेक्ट आएगा कि एट ए टाइम ही हो रहा है ना, विल नॉट बी एबल टू कैच दैट दोज डिलेज. तो अगर ये इसके विद इन दैट पीरियड अगर आप ऑन ऑफ करते हो, तो जो भी डिस्प्ले करोगे तो यू विल गेट दैट इफेक्ट. तो सिंपल प्रोग्राम है कि आपको बस सेंड ही करना है कोड, ठीक है. और ये परमानेंट लूप में डाल दिया तो आपको ये सब कोड डिस्प्ले होते जाएंगे.
या आप ले लेना प्रोग्राम्स मेरे से, या बुक्स में भी दिए हुए हैं ऑलरेडी। मेरे पास एक फॉरेन ऑथर की बुक है वैसे, बुक इज नहीं माजिदी से कुछ है, मैंने मिक्स सा यूज किया इसमें। एक और फॉरेन ऑथर का बुक है, कोई चाइनीज ऑथर है ये, एल्सवियर का कोई बुक है एक ना, मैं डॉक्टर कनिका को बता दूंगा, है ना, शी विल इन्फॉर्म मी, दैट इज वेरी गुड बुक। सो ये इट्स वेरी सिंपल सी प्रोग्राम। फिर एलसीडी का भी था वैसे, है ना, एलसीडी आपने 8051 में किया ही है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें बस आपको पोर्ट ही चेंज करने, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोर्ट ही चेंज करने, मैंने आरडी पोर्ट लगा दिया, जस्ट सिंपली चेंज द पोर्ट। ये 8 बिट का है, 4 बिट भी कर सकते हैं, 4 बिट में आप D4 से D7 में लगा लो, बाकी ग्राउंड कर दो, ठीक है। और उसमें निबल डेटा भेजोगे, निबल वाइज डेटा भेजोगे उसकी प्रोग्रामिंग में, इसमें पूरा 1 बाइट भेजना पड़ेगा। और उसकी स्टेप्स फिक्स है कि पहले फंक्शन सेट भेजना है, फिर 06 फिर 01, 4 स्टेप्स है इनिशियलाइजेशन के। हाँ, एलसीडी के 4 इनिशियलाइजेशन स्टेप्स है। एलसीडी को आपको पावर देनी है, वीसीसी, ग्राउंड एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आपको उसका सेल्स एडजस्ट करने के लिए कि कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए। और कंट्रोल सिग्नल्स है आपके पास 3, सिलेक्ट रजिस्टर, रीड राइट और एनेबल, है ना। इसका आपको मेरे ख्याल से आपने पढ़ा हुआ है, अगर 8051 के साथ भी किया हुआ तो इट सेम, इट रिमेन सेम। तो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम में कोई भी हार्डवेयर के साथ जब इंटरफेसिंग करते हैं तो पहले तो हमें हार्डवेयर के बारे में जानना होगा, यू शुड हैव फैमिलियरिटी विद हाउ एलसीडी वर्क्स। एंड दिस इज इंटेलिजेंट स्मार्ट एलसीडी, इसके अंदर भी एक कंट्रोलर लगा हुआ है, ये पता ही है ना आपको, इसके अंदर भी एक कंट्रोलर है, ठीक है। ये जो कनेक्शन दिखाए गए ये है itself is an embedded system, you can say, because it is performing particular dedicated task, तो it is an embedded system, क्योंकि कंट्रोल ग्राफ CG रैम है, DD रैम है, 2 रैम्स इसके अंदर होती है। हाँ, ओके। सो ये टाइमिंग डायग्राम्स है, रीड राइट टाइमिंग डायग्राम्स कैसे होनी चाहिए। फिर इसके ये 2 लाइन 4 लाइन मटेरियल तो मेरे पास बहुत था, बट लेकिन वो ये एक्चुअली दिस इज अ कंप्लीट 1 सेमिस्टर्स मॉड्यूल। एक कोई कंट्रोलर हम एक सेमिस्टर में सीखते हैं, 8051 में हम एक सेमिस्टर में सीखते हैं, तो पिक तो वैसे भी और हाई एंड आ जाता है। तो दीज आर द कमांड्स, ये कमांड्स हमें भेजनी होती है, हर एक कमांड का एक मीनिंग है कि क्लियर डिस्प्ले कैसे हो रहा है, ये सब चीजें। एंड देन इसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपको समझ में आ ही गया कि ट्रिस यूज करना है। देखो प्रोग्रामिंग भी बड़ा सिंपल सा है, आप देख रहे होंगे वाइड मेन वाइड हर जगह वही पड़ रहा है, और ट्रिस आपको यूज करना है बस। किसको आउटपुट यूज करना है, तो पिक में आपने समझा क्या है कि आपको ट्रिस पोर्ट्स के साथ, आपको ट्रिस के साथ डील करना है। और उसके बाद में तो रेस्ट ऑल रिमेन सेम, मैंने डिले दिया। और फिर 38 इज अ फंक्शन सेट एलसीडी के केस में, वहां पर मैं 7 सेगमेंट की भेज रहा था, यहाँ पर मैं एलसीडी की कमांड भेज रहा हूँ। 38 इज अ फंक्शन सेट जो बताता है कि 2 लाइन है, 5x7 मैट्रिक्स है, हाँ 2 लाइन एलसीडी है। और फिर डिले बिटवीन 2 इंस्ट्रक्शन, ये डिले बेस्ड है। दूसरा हम बिजी फ्लैग रीड करने वाला बेस भी प्रोग्राम बना सकते हैं, बट नॉर्मली पीपल यूज डिले बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि उसमें एक पिन आपकी यूज है, D7 रीड करते हैं डेटा रजिस्टर का, तो उसमें वो बिजी फ्लैग, तो बट आपका एक पिन खराब होता है RW का, रीड राइट जो हम नॉर्मली ग्राउंड करते हैं उस केस में वो बिट्स को लगानी पड़ेगी, क्योंकि रीड करना है आपको स्टेटस। देन दैट एक्ट्स लाइक ए कमांड, जैसे हम फंक्शन सेट एज ए कमांड है, तो दैट ऑल्सो उस केस में भी आपका RS जो है दैट विल बी 0। जब आप रीड कर रहे होंगे बिजी फ्लैग स्टेटस फ्रॉम द 7th बिट ऑफ द डेटा रजिस्टर, तो वो दी 7th बिट जो रीड करना है तब RS का स्टेटस 0 रहेगा, और एनेबल तो 1-0 करोगे आप विद द डिलेस, ठीक है। तो RS तभी 1 होगा जब डेटा राइट करना है। तो मेन एलसीडी में एक ही बात समझने वाली कि हम इनिशियलाइजेशन की 4 स्टेप्स भेजते हैं, उसके बाद में एलसीडी इज लाइक रेडी। एंड इनिशियलाइजेशन फॉर एवरी माइक्रो एम्बेड सिस्टम में जितने भी हम डिवाइसेस इंटरफेस करते हैं, एम्बेड सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो सबका इनिशियलाइजेशन होता है, चाहे एलसीडी हो, आरटीसी हो, कुछ भी इंटरफेसिंग करनी है। इट इज लाइक देन द डिवाइसेस IO पेरिफेरल्स आर रेडी टू सर्व यू। जैसे हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, बाथिंग करते हैं, देन वी आर रेडी टू वर्क, वी गेट इनिशियलाइज्ड। सिमिलरली एम्बेडेड सिस्टम में जितने भी पेरिफेरल्स है आप सबको इनिशियलाइज करोगे, तब दे आर रेडी टू सर्व यू एंड वर्क फॉर यू, लाइक यू आर सेइंग नाउ डिस्प्ले माय नेम, display this, do that. So there is some initialization requirement. तो LCD में भी this is initialization thing,
विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये प्रोग्राम है विच इज वेरी सिंपल. इसमें डेटा और कमांड दो चीजें हम बेचते हैं. सो इफ यू नीड then I can send this program and these slides to you, and I think otherwise we can call off for a day. It's already lunch break, so है ना, ठीक है. Rest all, I think this is not the end of the things. What the primary idea was to just touch you up with the various things, and you can always contact me through email to Dr. Kanika to solve your problems. And I hope, although I don't say that you have understood 100% the PIC programming or PIC controller, but at least definitely you have got some touching and some understanding that okay, PIC differs from 8051, something like that, and what exists in PIC and what exists in 8051, because so far you're well versed with the PIC 8051, but now you also know what is there in the PIC, how it differs from PIC 8051. So I think it must have served at least 70-80% the purpose that it is meant for. Yeah. Rest all is all up to the practice. Even if you don't have many more tools available to you, simply Keel आपके पास है, MPLAB का environment which is freely available. आपको पैसा भी नहीं चाहिए. आपको इंस्टॉल करना है, उसके सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बस प्ले करना है चीजें. जितना फाइनली सी इट इज नॉट दैट टीचर्स व्हाट दे विल टीच, फाइनली इट इज हाउ मच यू डू. जितना आप प्रैक्टिस करोगे दैट मच यू विल नो. एंड अभी मैं यहाँ से बता रहा हूँ तो मैं ऐसे बता रहा हूँ एज इफ आई नो एवरीथिंग, बट आप लोगों तक वो तभी पहुंचेगा इफ यू विल डू योरसेल्फ. यू कैन नॉट पुट योरसेल्फ यू नो टिल यू पुट योरसेल्फ इन माय शूज. सो वो तभी होगा. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसे बताते हैं, एक्सपीरियंस. So by practicing more and more, that is only the mantra actually. So this is just the kickstart. आपको एक beginners familiarity आई है, एक kickstart आया है, introduction आया है, and now you feel okay. आपको एक touch हो गया कि PIC कुछ होता है. Now you know कि PIC एक microchip है, microchip technology company है, MPLAB एक atmosphere development tools आते हैं, MPLAB उसमें आप कर सकते हो. So that was only the purpose, just to introduce.